जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। आइए एक नज़र डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। कल से लगेगी कोरोना की वैक्सीन, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। देश भर में कल यानी शनिवार से कोरोना वायरस के टीके कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के मध्य से देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। इस कार्यक्रम से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 स्थान डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे और हर एक केंद्र पर 100 लोगों के टीकाकरण होगा। वैक्सीन को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं। सवेरे 10 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनोग्रेशन करना है, लॉन्च करना है। उस तो बाद 10:30 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੇ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਟਰਾਇਲਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੀ ਟਰੋਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ? 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। 30 ਮਿੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਡੇਕ, ਫੀਵਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਸਟ ਟੂ ਵਰਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਇਲਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਹੈ। ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਭੇਜਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 30,000 ਡੋਜ਼ਸ ਆਈਆਂ। 30,000 ਡੋਜ਼ਸ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਫ ਹੈ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमान मद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की छठी पुण्य तिथि के पावन दिवस पर लुधियाना श्री संघ द्वारा आत्म बल्लभ जैन उपाश्रय पुराना बाजार में पूज्य गनिवर डॉक्टर इंद्रजीत विजय जी महाराज साहिब आदि थाना 2 की पावन निश्रा में गुरुदेव के गुणानुवाद, चालीसा और आरती के साथ साथ इस महान दिवस को अयम्बिल तपो दिवस के रूप में मनाते हुए सैकड़ों गुरु भक्तों द्वारा अयम्बल तप किया गया। जय आयोजन श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर लुधियाना के तत्वाधान में गुरुदेव द्वारा स्थापित धार्मिक कार्यों एवं विधि विधान के लिए गठित विजय वल्लभ सेना उत्तरी भारत के कर्मठ सेवाभावी कार्यकर्ताओं के प्रधान विशाल जैन गग्गी के निर्देश में किया गया। आज यानी गुरुदेव का जब काल धर्म हुआ था, तो काल धर्म के बाद सबसे पहले अगर कहीं पर ये आम्बिल का आयोजन हुआ है तो भी हमारे पंजाब में हुआ है, लुधियाना श्री संघ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लुधियाना श्री संघ में हुआ है। और प्रांतों में ठीक है, अपने अपने घरों में लोग कर लेते हैं आम्बिल, लेकिन इस तरह से सामूहिक आम्बिल का जो आयोजन है वो हमारे पंजाब प्रांत में ही हुआ है। शिरोमणि श्री संघ लुधियाना में ही हुआ है। तो जब से गुरुदेव का काल धर्म हुआ है, उसी दिन से यहाँ पर आम्बिल का तप करवाया जाता है। हर वर्ष यहाँ पर हमारी सेना, वल्लभ सेना के नेतृत्व में, आत्मानंद सभा के तत्वावधान में ये आम्बिल का आयोजन होता है। और यहाँ पर इतने बड़ी बड़ी संख्या में भी आम्बिल हो चुके हैं। 700 आम्बिल भी यहाँ पर हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े
आयोजन भी हो चुके हैं और उस समय भी लाभार्थियों की लाइन थी। क्या थी? लाइन थी 14-15 लाभार्थी। और हमारे एक गग्गी जी बता रहे थे कि इतना इतना खर्चा करने के बाद पारना भी करवाया सभी का, 700 आराधकों का, तपस्वियों का पारना करवाया और खुले दिल से खर्चा किया, ऐसा भी नहीं। लेकिन फिर भी पैसा बच गया, 1 लाख जितना रुपया बच गया तो हमारे श्रमणोपासक गुरुकुल में दे दिया गया था। तो ऐसे बड़े बड़े आयोजन, आम्बिल तप के आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ पर होते हैं। तो इस बार भी ये आम्बिल के शुभ आयोजन में मुझे सौभाग्य मिला, यानी तपस्वियों का दर्शन करने का, आम्बिल के तपस्वियों के दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से हमारी धर्म भावना, देव, गुरु और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा भावना, आस्था भावना बढ़ती रहे और गुरुदेव के जो उपकार है उन उपकारों को हमें याद करना है। हमारे प्राणाधार परम पूज्य गुरुदेव बच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर विराजित डॉक्टर गुरुदेव इंद्रजीत विजय जी महाराज साहब की पावन इशरा में श्री आत्मानंद जैन सभा के तत्वावधान में गुरुद्वार द्वारा स्थापित विजय वल्लभ सेना ने भक्ति निमित्त आज का भव्य आयोजन, उनके गुणानुवाद सभा और आरती का जो संकल्प लिया हुआ है, आज वो आयोजन हुआ। साथ में उनका पुण्यतिथि जो है वो हम आयमल तप दिवस के रूप में मनाते हैं। आज यहाँ पर सैकड़ों आयमल तप का भी आयोजन हुआ है। तो आज के पावन दिवस पर हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, कोटिश कोटिश उनको वंदन करते हुए, श्रद्धा निमित्त उनके चरणों में नमन देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव यहाँ भी रहें, उनका वर्धत सदा सकल समाज पर, विशेषतः श्रोमणी श्री संघ लुधियाना पर बना रहे। और जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, जीवन जीने की कला सिखाई, जिन बिंब और जिन आगम का पाठ पढ़ाया, उसको स्मरण करते हुए, उसको अमल करते हुए हम अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने कर्मों की निर्जरा करें। इन्हीं भावों के साथ सकल श्री संघ को और से आज गुरुदेव के चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम और वंदन जो है करते हैं। बोलो विजय रत्नाकर श्री महाराज की। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राकेश की रिपोर्ट। कृषि कानूनों पर 1 महीने से अधिक समय से जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच 9वें दौर की वार्ता आज शुरू हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेलवे, वाणिज्य एवं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री तथा पंजाब से सांसद सोम प्रकाश करीब 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विज्ञान भवन में वार्ता की। इससे पहले 8 जनवरी को हुई वार्ता बेनतीजा रही थी। आइए देखते हैं आज की मीटिंग की चर्चा। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਢੀਠ ਸਹੀ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ 5-4 ਸਾਥੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NI ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NI ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ। 307 ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ
ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਔਰ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਖੜੇ ਆ उस दिन इन्हों के उत्ते गलबात होगी। तीनों कानून जिसमें 2 नए एक संशोधित है उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहाँ तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। दी फिरोजपुर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने पंजाब सरकार और प्राइवेट स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए फिरोजपुर में एक विशेष बैठक की आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने सरकार और प्राइवेट स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और हाथों में बैनर तथा शहर से एक रोष मार्च निकाला गया। इस मौके अभिभावकों का कहना था कि प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी तरफ से सरकार का कोई ध्यान नहीं है और उनका कहना है कि फिरोजपुर के तकरीबन सभी प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लास लगाने में आनाकानी कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट में। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, विजय सिंगला मुर्दाबाद। मेरा नाम मिसिस मीनू उदावन है। मेरे बच्चे HMDOV पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। एक मेरे बच्चा जो सेटल में है, दूसरा मेरा 7th में है। सेटल वाले के लिए हमें शीट्स दे दी है, बट ना वो 7th वाले बच्चे की शीट्स नहीं दी। बोला कि ऑफलाइन ओनली पेपर, हमने रोल नंबर भी नहीं सेंड करना, हमने लिंक भी नहीं भेजना। अब बच्चे प्रेशर में है कि अगर 15 बच्चों का लिंक आता है, हमारे बच्चे तो नहीं आ रहा, तो बच्चा टेंशन में आ जाएगा। हमें ये रिक्वेस्ट है कि हमें विनती भी है कि इससे तरह प्रेशर ना डाले बच्चों पर, इससे कोई भी हादसा हो सकता है। बच्चा कोई होता है कि सहन कर सकता है, किसी का दिल होता है नहीं सहन करने वाला। मतलब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं स्कूल वाले। तो जो ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आओ ऑफलाइन पेपर दो,
हमने अपने बच्चे नहीं भेजने तो नहीं भेजने, ये हमारा फर्स्ट फैसला भी है और लास्ट भी है। ये हमारी बात आज भी है और हमेशा रहेगी कि हमने अपने बच्चे नहीं भेजने। इस सेशन में, न्यू सेशन में जब स्टार्ट होता, जब सारा मामला हल हो जाएगा तो हम अपने आप अपने बच्चे भेज देंगे, बट इस बार नहीं। और ये 15 दिन तो जो पेपर होने वाले हैं बच्चों के, ये प्रेशर डाला जा रहा है कि ऑफलाइन ही होंगे, तो हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन ही पेपर हो। जैसे पहले सिस्टम चलता था, ऑनलाइन पेपर होला, पिक भेजी जाएगी, शीट्स जमा होगी, शीट्स आधे घंटे में हम जमा करवा देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो पेपर है वो ऑनलाइन ही हो, ऑफलाइन ना हो। थैंक यू सर। मेरा नाम मोनिका सेठी है, मैं दी पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर हूँ। फर्स्ट लेडीज मैं ही हूँ मेंबर। बस यही है कि सर जो इन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन का पंगा डाला है, वो सरकार को चाहिए कि ये सब नहीं करना चाहिए। या तो सरकार ये अनाउंस कर दे कि कोरोना नहीं है। देखिए मास्क हमने पहना हुआ है, मास्क उतर जाए तो ये चालान काटने को आ जाते हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं। एक भी बच्चे को ऐसा कुछ हो जाए, क्या सरकार ये जिम्मेदार रहेगी? सिंगला जी ने एक दिन में ये बोल दिया कि स्कूल लग जाए, कि बच्चे लैब है, लेबोरेटरी है कि उनके ऊपर टेस्ट करना। हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों के ऊपर ये वैक्सीन टेस्ट नहीं होगी। आई है ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ नहीं भेजना चाहते, साडा यही फैसला। फिरोजपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट। नाभा में पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसकी कीमत 5.5 करोड़ रुपए की लागत से ये विकास कार्यों का नींव पत्थर रखा गया। इस मौके कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने केंद्र की मोदी सरकार और सुखबीर बादल पर शाब्दिक हमले करते हुए सुखबीर बादल की तरफ से कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर किसानी संघर्ष को कमजोर करना चाहते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए धर्मसोत ने कहा कि बीबी हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल, इनकी सरकारों ने ही कैबिनेट में बैठकर ये कानून पास करवाया था और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने असेंबली में इस संकल्प को रिजेक्ट किया था। और दूसरी तरफ सुखबीर बादल अपने विधायकों के साथ बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये है जी, ये तकरीबन 40 साल तो लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं और असी सारा ये लेट जरूर होया कम। पूरे पैसा 5 करोड़ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਡ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਮੜੀਆਂ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਲੌਕ ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਿੰਮ ਜਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੰਮ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਹੋਈ ਗਲੀ दिमाग वाली। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। फिरोजपुर फरीदकोट रोड पर बने हुए इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग लगने से गोदाम में पड़े करीब 2 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक का सामान जलकर राख हो गया। बिल्डिंग में आग लगने के कारण गोदाम की छत भी गिर गई और वहीं आग बुझाने के लिए फिरोजपुर सिटी कैंट जीरा फरीदकोट मोगा से आई फायर ब्रिगेड की ओर कई गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही हैं। न्यू लक्की रेडियो का गडाउन है जी, वर्लपूल गॉडरेज का इलैक्ट्रॉनिक्स आइटम है। LED के अंदर अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ का स्टॉक है। कारण की बनाया जी? कारण हले किसी कारण का पता नहीं चलिया, क्योंकि हले तो काम चल रहा। फायर ब्रिगेड आईयां ने जीरे तो, फरीदकोट तो, आर्मी दी, कासूबेगू तो, डिफेंस दी, कैंट बोर्ड दी, फिरोजपुर सिटी दी, ते हाले तो अग बुझा ही रहे है। तो उस तो बाद ही ये सारे अपना फायर ब्रिगेड वाले कारण कढ़नगे भी की कारण सी, शॉर्ट सर्किट सी या होर की कारण हो सकता है। बिल्डिंग में अग लगी जी, तो फैक्ट्री स्टोर है, फ्रिजा फ्रिजा वगैरह तो OTV वगैरह। कितना का नुकसान हो गया इसला? कम से कम 2 करोड़ का नुकसान हो गया। कितनियां गड्डियां ने अग बुझाई है? 4 गड्डियाँ जी। कितों कितों आई हैं? कुछ अपने फिरोजपुर सिटी दी है, मार्केट कमेटी, एक मिशन डिपो, 2 गड्डियाँ जीरा तो आई। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? भाई ट्रक फायर फाइटिंग। नाम की है? SO सतनाम सिंह। फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर द्वारा श्री मुक्तसर साहिब के मलोट रोड पर माघी के अवसर पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पंजाब के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों से 26 जनवरी को दिल्ली ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने की अपील की और कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य 3 कानूनों को रद्द करना था। आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के 4 सदस्य सरकार समर्थक थे और किसान संगठनों ने किसी भी समिति को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व आंदोलन को भड़काना चाहते थे या आंदोलन को मोड़ना चाहते थे, लेकिन सभी संगठनों ने इस बात पर सहमति जताई कि जब तक कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। बिल्कुल साडी लड़ाई शांतमई है। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਨੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਗੀਤਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। श्री मुक्तसर साहब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। राजेश मेहरा को दें इजाजत। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।